So today in this class we'll discuss about the that two questions. I think that was homework question, and further we'll discuss about product of sum. So let's see the question number one. That is so in this question let function f is given as a plus b. A plus b equal to a complement plus b. Okay, so this one is given a complement plus b, then value of function f, then f of x plus y comma y comma z. No, कल क्लास नहीं दी. Z, right, is this one. Okay, so this is the question given and some of options also given. So let me simplify this question and I will tell you the option also. Let me see. So option A is xy plus z, xy plus z. Option B, okay, पूनम कैमरा ऑफ करना. Yes, B, it is xy complement plus z, xy complement plus z. Then C, it is xy complement plus y z. And D, it is x. Okay, so this is the question given. Now let me simplify this one. So here a plus b function is given that a plus b equal to a complement plus b. Then this is the function given and we need to evaluate this function, right? So we'll find out the value for this function. So let me write down this function f equal to f of x plus y comma y, then it is a z. Okay, so this is the function given. So firstly I will simplify this inner function, this function. Okay, so this is nothing but you can consider this one is considered as a and this one is considered as b. So here it is a complement, so we'll do the complement of x plus y. So here it is x plus y complement and plus this b as it is, so we can say this is what y. Okay, just a minute.
So it is x plus y complement plus y, right? So this can be written as x plus y complement, that can be written as, okay, outside क्या रहेगा, outside is as it is, this one. Okay, so this x plus y complement can be written as x complement into y complement by the De Morgan's law, right? So x complement y complement, then plus y, right? So we can say it is x complement plus y, right? It is x complement y complement plus y, then it is z. Okay, so now what we can do, we can simplify this one. Okay, so we'll consider this one as a and this one as a b. Okay, so we need to do the complement of a, तो इसका मतलब इसका complement करना पड़ेगा. So it is x y, x complement y complement plus y. So do the complement of this one and plus b as it is, b means z, z as it is. Okay, now what we can do, again De Morgan's law. So here we can say it is a x complement y complement and it's a whole complement plus y complement plus it is z. Okay, so this can be further written as, again by De Morgan's law, we can say it is x complement and its complement, and in between अगर एंड है तो क्या कर देंगे, इसको और में कन्वर्ट करेंगे और ये क्या हो जाएगा y complement and its complement plus it is a y complement plus z, right? So now this complement to complement cancel, complement to complement cancel, so we can say it is x plus y plus y complement plus z. Okay, so I have done some mistake. ओके यहाँ पे भी था ना, तो ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. यस, एक बार फिर से करता हूँ मैं, लेट मी इरेज दिस वन अगेन. यस, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था. यस, सो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज एक्स कॉम्प्लीमेंट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ पे बीच में क्या था, ये प्लस, प्लस को क्या कर देंगे, एंड में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, y complement plus z. Now we can say this complement cancel, this complement cancel, so we can say it is x plus y, then y complement plus z. So if we multiply this one, it is xy complement plus y and y complement, y complement plus z. So y complement 0 हो जाएगा, so it become finally x y complement plus z. So finally this is what the result. So x y complement plus z, x y complement plus z, so answer is b here, right? So b is the correct answer. So is it clear to all? ओके, लास्ट वाला फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ से इसके बाद से है ना. सो ये वाली स्टोरी है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y और यहाँ पे क्या है z, राइट? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस इज एज्यूम a, तो ये क्या हो जाएगा, एज्यूम कर लेंगे a है, और ये क्या होगा b एज्यूम करेंगे. तो a का क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और b क्या रहेगा एज इट इज. तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी कैन से इट इज x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट? और यहाँ पे प्लस है, इसको एंड में कन्वर्ट कर देंगे,
ये एंड हो जाएगा और यहाँ पे y का क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। प्लस में क्या था, ये z हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, हाँ तो ये z हो गया। सो अब क्या करेंगे इसको, इट इज़ x कॉम्प्लीमेंट, इसको फर्दर डी मॉर्गन्स लगा देंगे, x कॉम्प्लीमेंट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे एंड है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, y कॉम्प्लीमेंट देन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट प्लस में z हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली x हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, y कॉम्प्लीमेंट, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये y आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, सॉरी y कॉम्प्लीमेंट, और अब सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर क्या आ जाएगा, दैट एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस z। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, now let's see the next question. So next question is what, in canonical form, SOP form, in canonical SOP form, the number of mean term present, number of mean term presenting the logical expression a plus b complement c is, okay. So this is what the logical expression given, and what it is representing we need to tell. And here minimum number of term it is asking. So A option is 4, option B is 5, option C is 6, and option D is 7, okay. So यहाँ पे क्या करना है, अपने को ये बताना है कि कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में नंबर ऑफ मीन टर्म्स कितनी होगी, ठीक है। तो अभी ये कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैनोनिकल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। और कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है कि हर एक टर्म के साथ सारे के सारे वेरिएबल होने चाहिए, जैसे ये ए है इसके साथ बी भी होना चाहिए, सी भी, और यहाँ पे क्या है, बी और सी तो है, ए भी होना चाहिए, राइट। सो ए होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, इसके साथ मुझे क्या क्या चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, तो यू कैन से इट इज ए। अब मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, बी का मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, इट इज बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो इक्वल टू 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सी भी चाहिए तो क्या कर देंगे, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इक्वल टू 1 होता है और आइडेंटिटी होता है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। प्लस में क्या होगा, नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी है तो मुझे क्या चाहिए, ए और चाहिए, ठीक है। तो ए चाहिए तो क्या करेंगे, अगर ए चाहिए तो हम ये कर लेते हैं कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, और फिर क्या कर देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। अभी भी क्या है, ये और ये सारी टर्म्स क्या है, सेम है, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस में क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ए बी देन सी, ए बी सी प्लस अगेन ए
बी सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्या हो जाएगा, इट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, प्लस क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट देन सी, ये हो जाएगा। ओके, अब कोई टर्म क्या कर रही है, मैच कर रही है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, राइट। तो इसको क्या करना है, एक ही बार लिखना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इट इज ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस a complement b complement and c, right। finally this is what the result। and क्या पूछा है, number of mean terms are 1 2 3 4 and 5, so number of mean terms are 5, so answer is b। so is it clear to all? Yes, this question is clear to all? Clear? Okay. Okay, fine. So now we'll see the next one, that is a product of sum, POS. So next one we'll discuss about POS. POS stand for product of sum. So already what we have seen the sum of product. Now we'll see the POS form, so product of sum form, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, राइट, और लेट मी से सी कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्या होगा, अज्यूम इट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद क्या है, अज्यूम इट इज ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, POS फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, POS फॉर्म है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए क्या करेंगे, पहले सम करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या किया, सम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं, पहले सम किया फिर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब पहले सम करना है और फिर क्या करना है, उसका प्रोडक्ट कर देना है, right। and these terms are known as this one and this one, they are known as max term, ठीक है। वहां पे SOP के केस में क्या था, in case of SOP we have seen that was mean term, right। now it is max term। in case of POS there will be the max term। okay, next thing, that POS form is used when output is logic जीरो, ठीक है। आउटपुट क्या रहेगा इसमें, जब लॉजिक जीरो होगा तभी क्या आएगी, आउटपुट आएगी। वेन एवर इट इज जीरो तो क्या होगा, देर विल बी द आउटपुट, ठीक। और SOP के केस में क्या था, आउटपुट ऑन वन लॉजिक वन पे क्या थी, आउटपुट थी, यहाँ पे लॉजिक जीरो पे क्या रहेगी, आउटपुट रहेगी। ओके, सो इफ आई एम राइटिंग जीरो देन वी कैन से इट इज A, एंड इफ इट इज 1 देन वी विल से A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब जीरो होगा तब क्या करेंगे, विल राइट डाउन द सिंपली वेरिएबल, एंड इफ इट इज 1 तो क्या करेंगे, उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। okay, so let me say if it is a 5,
5 को कैसे लिख सकते हैं, इट इज 101। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी और सी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज लॉजिक जीरो पे काम करता है ना, तो जीरो जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, ये ए होगा, और वन पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे वन था तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे जीरो है तो बी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट। इफ इट इज गिवन एज 9 अज्यूम, सो 9 को क्या बोलेंगे, 1001। तो 1001 का मतलब क्या हो गया, we can say here it is A, B, C and D। तो जहाँ पे 00 होगा उसको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, 11 पे कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट, B, C and D कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? Yes, is it clear till this part? Okay, fine. So now we'll see the truth table for minimizing the POS expression। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, POS expression बनाएंगे ट्रूथ टेबल की हेल्प से, और फिर क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे। और वन थिंग, ये डिजिटल जो कर रहे हैं, इसकी मैं PDF नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है, आपको नोट डाउन करते रहना है साथ में, ठीक है। और अगर नोट डाउन नहीं किया है तो मुझे बोल देना, आगे से अभी के लिए नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना इसको, ठीक है। या क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ताकि बाद में लिखना है तो बाद में लिख सकते हो बैठ के आराम से। Okay, so now we'll take the truth table. Here it is A, here it is B, and here it is Y. Y is the output. So here 0 0, 0 1, 1 0, and 1 1, right. And for this one, here it is 1, here it is 0, here it is 1, and here it is 0, right. So now we need to find out the output for this one, right. This y is representing the output, so we required the output। तो output निकालना है, output क्या होनी चाहिए, so it's depend on logic 0। तो जहाँ जहाँ 0 होगी वो क्या रहेगी, आउटपुट में आएगी, राइट। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, दिस वन 0 and 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, इट इज 1 1। सो व्हाट वी कैन राइट डाउन फॉर दिस वन वी कैन से इट इज ए के नीचे क्या है, 0 है, 0 का मतलब क्या होगा, एज इट इज ए आएगा, और बी के नीचे क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, राइट। ओके, लेट मी राइट डाउन। क्या आ जाएगा, ए का मतलब तो ए आ जाएगा, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट। और अब क्या करना है, पहले क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, फिर क्या करना है, एंड करना है, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, तो पहले सम और फिर क्या करना है, प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म इज दिस वन। सो ए के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सो ये क्या आ गई, क्या आ गई, एक्सप्रेशन आ गई, राइट। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन इन POS फॉर्म। POS फॉर्म में क्या है, एक एक्सप्रेशन हमें मिल गई है। अब क्या करना है, इसको, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। y की वैल्यू मैंने बताया था ना कि प्रोडक्ट ऑफ सम करेंगे तो वहां पे क्या अप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में लॉजिक 0 अप्लाई होता है, ठीक है। तो जहां पे भी 0 होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वाला लिखा हमने, ठीक है।
तो 0 का मतलब ए आएगा, और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे 1 है तो b का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बीच में क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है। अरे मैंने ऐसे ही रफली ऐसे ही लिखा है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। ये y कोई आउटपुट आ रखी है, किसी भी फंक्शन की आउटपुट आ रखी है। आई एम नॉट सेइंग इट इज एक्सोर और समथिंग एल्स, किसी की भी आउटपुट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 0 और ये वाली 0, इस लॉजिक को कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे इसको काउंट किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन निकाली जाएगी। क्लियर? यस, इज इट क्लियर? ओके, नाउ yes, now what we'll do, we'll try to simplify this one। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को। सो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। सो हियर इट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए b complement plus b complement a complement, means a complement b complement I can write down, and next it is b complement, b complement b complement, ठीक है। तो फाइनली a complement a complement क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। और b complement b complement को एक बार b लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, ये a b complement प्लस a complement b complement हो गया। ओ, ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते थे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जा सकता था डायरेक्टली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये टर्म क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस बी कॉम्प्लीमेंट इज मैचिंग, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ला अप्लाई कर देंगे ना, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये फाइनली क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट। किसी को डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं है तो पीछे मैं करा चुका हूँ वो डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो दिस इज व्हाट द फाइनली minimization of the expression। Okay, so is it clear to all? Okay, next thing this y can be written in POS form as, ठीक है। so y can be written in POS form as, कैसे लिख सकते हैं y को, y can be written as y and variables is a comma b, right। so we'll write down this one as पाई ऑफ कैपिटल एम, राइट। इसको कैपिटल पाई ऑफ कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज व्हाट द मैक्सट्रम, ठीक। सो मैक्सट्रम एंड वाई क्या, पाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज पीओएस फॉर्म, ठीक है। तो ये पीओएस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और एसओपी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, समेसन रिप्रेजेंट करेगा एसओपी का। और मीन टर्म के लिए यहाँ पे स्मॉल एम आएगा, यहाँ पे मैक्स टर्म है तो कैपिटल एम आएगा। और ये जीरो कहाँ पे था, ये वाली जीरो थी ना, ये जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो एंड वन, जीरो और वन की बाइनरी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, इट इज़ वन, तो यहाँ पे वन आएगा। और दूसरा ये वाली जीरो कहाँ पे है, ये वन वन पे, वन वन का मतलब क्या होता है, इट इज़ थ्री, सो थ्री, राइट।
तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। सो ये आउटपुट थी, इसको पॉज फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, POS फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, और इसी को SOP फॉर्म में लिख के दिखाना। फिर SOP फॉर्म में y को, चलो मैं ही बता देता हूँ। SOP फॉर्म में y को लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये y ऑफ a कॉमा b विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल m देन अदर देन 1 एंड 3। अदर देन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, बिकॉज SOP में क्या कंसीडर किया जाता है, 1 को कंसीडर किया जाता है ना एज ए आउटपुट। तो 1 का मतलब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या हो गया 0 0 0 0 का मतलब क्या होता है 0 होता है, और दूसरा 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसका मतलब क्या हो गया 1 एंड 0, 1 एंड 0 का मतलब क्या हो गया 2। इसका मतलब अगर आपको किसी की मैक्स टर्म का पता है तो SOP फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, अदर देन 1 एंड 3, जैसे अदर देन दिस टर्म, ठीक है, दीज टर्म्स, इनके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा आपके SOP फॉर्म में आएगा। और SOP का अगर पता है तो अदर देन दिस वन 0 एंड 2 हियर, ठीक है, अदर देन 0 एंड 1 क्या क्या हो सकता है 1 एंड 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर मैक्स टर्म में होगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स केस लेके चलती है यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, फर्स्टली मुझे कंफर्म करो, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मान लीजिए फंक्शन f दे रखा है, f ऑफ a कॉमा b कॉमा c, ये दे रखा है, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज दे रखी है, समेशन ऑफ m, दैट इज, अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी बनेगी 2 पावर 3, राइट, 2 पावर 3 मीन्स 8, 8 वैल्यूज बनेंगी, 8 वैल्यूज क्या होंगी 0 to 7, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या आ सकता है 0 से 7 तक का नंबर आ सकता है। सो लेट मी राइट डाउन 0 1 0 4 1 एंड 7 अज्यूम, राइट, ये दे रखा है। तो अगर ये किस में दे रखा है, किस फॉर्म में है, इट इज इन SOP फॉर्म। और इसको अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन दिस वन इन POS फॉर्म, तो इस फंक्शन को POS फॉर्म में लिखना है। तो POS में मुझे बताना नंबर क्या क्या आएगा। सो POS फॉर्म में पाई ऑफ कैपिटल M, हाँ, ओके, सो यस, अदर देन दीज, अदर देन दीज का मतलब क्या हो गया, इट इज 1 2 देन 3 4 नहीं आएगा, 5 एंड 6। ओके, 1 यहाँ पे है तो 1 भी नहीं आएगा यहाँ पे, सो 2 3 5 एंड 6, ये क्या होगा इसका POS फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। तो ये इसकी POS फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो अगर वेरिएबल क्या थे आपके पास 3 थे, तो ये नंबर मीन टर्म्स कितनी आ रही थी, एंड मीन टर्म एंड मैक्स टर्म्स की बात करें, अगर 3 वेरिएबल है तो मीन टर्म और मैक्स टर्म कितनी बन रही है, दैट इज 8, सो इट इज 2 पावर 3। तो अगर बात करें इफ देर आर n वेरिएबल, इफ देर आर n वेरिएबल देन मैक्सिमम पॉसिबल मीन टर्म एंड मैक्स टर्म, मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर, यस, मीन टर्म मैक्स टर्म कितनी बनेगी, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल हैं तो कितनी बन रही है 2 पावर 3 बन रही है, इसका मतलब क्या होगा n वेरिएबल अगर होंगे तो
मीन टर्म कितनी बनेगी, इट इज 2 पावर n एंड मैक्स टर्म ऑल्सो इट इज 2 पावर n। ठीक है, तो मीन टर्म मैक्स टर्म कितनी बनेगी, दैट इज 2 पावर n। इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, fine.